Hello students, today we will be solving the fourth practical question of hire purchase. The link of the question has been given in the description box. You are requested to download it, read it. Let us solve question number 4 of fire insurance claim. In the question it is given that Prasad had purchased 4 motorcycles of rupees 14,000 each and on hire purchase system from Messrs Gandhi and Sons. The hire purchase price for all the 4 vehicles was rupees how much? 60,000. So in the question it is given the hire purchase price is 60,000. Cost of one motor or the cash price of one motorcycle is 14,000. Prasad has purchased 4 motorcycles, so multiplied by 4. So it comes to how much? It comes to 56,000. And the hire purchase and out of the 60,000 hire purchase price, 15,000 is to be paid as a down payment, and there is a 3 equal installment of 15,000 each, which is to be paid at the end of the year. The interest is charged at the rate of 5% per annum. First, let us solve the analysis table. In the question, the year is not mentioned, so we will write it is first year. Prasad has purchased 4 motorcycles and the cash price of each motorcycle is how much? 14,000 rupees. 14,000 multiplied by 4, so it comes to how much? 56,000 rupees. Initially, on the date of purchase, Prasad has paid a down payment of rupees how much? 15,000 rupees. So the balance amount at the end of the opening period, it is how much? 41,000 rupees. The interest is charged on the balance amount, that is 41,000 multiplied by 5%. So it comes to how much? 41,000 multiplied by 5%, it is 2050. The total installment value is how much? 15,000, and the cash price in installment it is equal to how much? 15,000 minus 2050. So it comes to how much? 12,950 rupees. इस 12,950 rupees को क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे. So at the end of the first year or at the starting of the second year, अमाउंट कितना हो गया? बैलेंस 41,000 माइनस 12,950, ये आ गया 28,050. सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 28,050 मल्टीप्लाइड बाय 5%. 28,050 multiplied by 5%, it comes to how much? 1403. Installment value is कितना? 15,000, and 15,000 minus 1403 minus 15,000, ये आ रहा है कितना? 13,597. ये माइनस हुआ, माइनस 13,597. सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी प्रसाद ने पे कर दिया है. तो एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू कितना? 28,050 माइनस 13,597. तो यहाँ पे आ रहा है 14,453. Because it is the last installment, we don't need to calculate the interest. Final installment पे करना है कितना? 15,000 का. और लास्ट इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा कैश प्राइस पे होगा 14,453. तो जो इंटरेस्ट रहेगा हम डिडक्ट करके निकालेंगे. 15,000 माइनस 14,450, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 647 रुपीज. तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है. लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते, हम माइनस करके डायरेक्टली क्या करेंगे? इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेंगे. अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है. क्वेश्चन में बोला है कि प्रसाद जो व्हीकल का डेप्रिसिएशन चार्ज करता है वो 10% पर एनम एज पर स्टेट लाइन मेथड चार्ज करता है. After having paid down payment and first installment, Prasad could not pay second installment.
तो प्रसाद ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है। अगर उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो हमारा एनालिसिस टेबल कहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ पे। और इसके आगे का हमको एनालिसिस टेबल बनाना नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और मिसेस गांधी एंड सन ने क्या किया, जैसे उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, उसने क्या किया, उसने गुड्स को रिपोजेस किया। तो यहाँ पे 4 मोटरसाइकिल प्रसाद ने खरीदे थे मिसेस गांधी एंड सन से, और नई पेमेंट करने के बाद मिसेस गांधी एंड सन ने कितने व्हीकल को रिपोजेस किया, 3 व्हीकल को रिपोजेस किया, और 1 व्हीकल को किसके पास छोड़ दिया, एज इट इज किसके पास छोड़ दिया, मिसेस गांधी एंड सन के पास छोड़ दिया। फिर उस व्हीकल को उसने क्या किया, वो तीनों व्हीकल पे उसने 1200 रुपए खर्चा किया, और उसको कितने में बेच दिया, उसको मिसेस पूजा को बेच दिया 35,000 रुपीज में। अब यहाँ पे नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने बोला बोथ पार्टीज के में। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट लेजर अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ परचेजर, दैट इज प्रसाद मोटरसाइकिल अकाउंट और हायर सेलर अकाउंट, ये 2 अकाउंट है। हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर सबसे पहले परचेज हुआ, तो हमने यहाँ लिखा 2। परचेज किससे हुआ, गांधी एंड सन से, 2 मेसर्स गांधी एंड सन्स। टोटल कैश प्राइस ऑफ 4 मोटरसाइकिल इट इज हाउ मच, 56,000 रुपीज। तो हमने यहाँ लिखा कितना, 56,000। और यहाँ पे हमने मिसेस गांधी की क्रेडिट साइड लिखा, फर्स्ट ईयर बाय मोटरसाइकिल अकाउंट इट इज हाउ मच, 56,000। उसके बाद क्या हो रहा है, उसका डाउन पेमेंट हो रहा है। पेमेंट किसको हो रहा है, मिसेस गांधी एंड सन। गांधी एंड सन रिसीवर बना तो उसको डेबिट किया, तो उसके डेबिट साइड हमने लिखा क्या, 2 बैंक अकाउंट दैट इज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट की अमाउंट कितनी है, डाउन पेमेंट की अमाउंट है हाउ मच, 15,000 रुपीज, दैट इज फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इट इज एन एक्सपेंस फॉर हायर परचेजर, इंटरेस्ट डेबिट होगा। और किसको पे करना है, मिसेस गांधी एंड सन को। मिसेस गांधी और सन को हम क्रेडिट किए, तो यहाँ पे लिखे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट फर्स्ट ईयर में कितना है, 2050। और प्रसाद ने पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, तो हमने यहाँ लिखा 2 बैंक अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है, 15,000 रुपीज, तो हमने यहाँ लिखा 15,000। और नेक्स्ट अब हमने क्या किया, क्लोज किया, तो यहाँ पे लिखा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये आ रहा है 58,050 माइनस 30,000, तो आ गया 28,050। नेक्स्ट होगा ये, क्योंकि एसेट है इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो हमने यहाँ लिखा फर्स्ट ईयर प्रसाद डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। डेप्रिसिएशन का रेट कितना बताया है, डेप्रिसिएशन का रेट बताया 10% एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पे हमने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 56,000। 56,000 का कितना, 10%, तो कितना आ गया 5,600। और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द एसेट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो इट इज 56,000 माइनस 5,600। तो माइनस किए, तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 50,400। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग ऑफ क्लोजिंग बैलेंस to the next year, that is second year, to balance brought down, it is 50,400, and opening balance of Mrs. Gandhi, it is second year,
बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,050। सेकेंड ईयर क्या कैलकुलेट हुआ, सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया हमने, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखा बाई इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट है 1403। अब क्या हुआ कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रसाद को पे करना था, लेकिन प्रसाद ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया क्या, नहीं, उसने डिफॉल्ट किया। और उसने जब डिफॉल्ट किया तो अब ये हायर सेलर जो कि मिसेस गांधी हसन, वो क्या करेगा, उसने जो गुड्स प्रसाद को बेचा है उसको क्या करेगा, रिपोजेस करेगा। अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है क्या रिपोजेशन की वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला है। कैसे पता करेंगे, अगर सेलर के हिसाब से डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया होगा तो हमको उससे क्या निकालना है, हमको उससे रिपोजिशन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलर कैलकुलेट करेगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं कि जो परचेजर है उसने पूरे साल भर मशीन को यूज कर लिया तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे सेकेंड ईयर, और ये पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन वो कितने मोटरसाइकिल पे कैलकुलेट करेगा, 4 मोटरसाइकिल पे कैलकुलेट करेगा। इट इज अमाउंट इट इज हाउ मच, 5600। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रिपोजिशन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और दूसरा रिपोजिशन वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम क्या चेक करेंगे, परचेजर को जो है वो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है रिपोजिशन में। अब यहाँ पे रिपोजिशन कितना मोटरसाइकिल हुआ है, 3। एक मोटरसाइकिल की कैश प्राइस कितनी है, 14,000। तो 3 मोटरसाइकिल की कैश प्राइस कितनी है, 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 अमाउंट कितना आया, 42,000। परचेजर जो कि प्रसाद है वो चार्ज करता है डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। और मिसेस गांधी जो रिपोजेस कर रहा है वो बोल रहा है कि उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना था वो कितना करना था, 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, प्रसाद के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन हुआ 4,200 और गांधी का हुआ 8,400, दैट इज 42,000 का 20%। फर्स्ट ईयर कोई भी मेथड हो, हमको ये याद रखना है कि कॉस्ट पे निकालते हैं डेप्रिसिएशन। तो सेकेंड ईयर हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी 37,800 और यहाँ पे आ रहा है ये 33,600। एक बार चेक कर लेते हैं, 42,000 माइनस 8,400, 33,600। सेकेंड ईयर का उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो अगेन सेकेंड ईयर का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका मतलब कॉस्ट पे लगेगा। तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 4,200। बट यहाँ पे सेलर के हिसाब से डिमिनिशिंग है तो हम डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे, जो ओपनिंग वैल्यू ऑफ दैट रेस्पेक्टिव ईयर आई है उस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आया 33,600 मल्टीप्लाइड बाय 20%। तो ये कितना आ रहा है, 6,720। अब हमने डिडक्ट किए, डिडक्ट करने के बाद हम चेक करते हैं एज पर परचेजर 3 एसेट 3 मोटरसाइकिल की वैल्यू उसके बुक्स में कितनी दिख रही है, 33,600। लेकिन एज पर सेलर उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 33,600 माइनस 6,720, अमाउंट आया 26,880। ये जो है दैट इज रिपोजिशन वैल्यू। रिपोजिशन का मतलब है एसेट की, उस गुड्स की जब्ती करना। तो यहाँ पे जो सेलर है वो जब्ती कर रहा है, वो 3 मोटरसाइकिल की जब्ती कर रहा है और 3 मोटरसाइकिल कितने में जब्त कर रहा है, वो जब्त कर रहा है 26,880 में। कम में रिपोजेस कर रहा है। तो यहाँ पे परचेजर के लिए क्या हुआ, लॉस। तो हम यहाँ लिखते हैं लॉस ऑन रिपोजेशन, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 33,600 माइनस 26,880। ये माइनस किए तो यहाँ पे वैल्यू आ रही 6,720। इट इज लॉस ऑन रिपोजिशन। अब रिपोजिशन की एंट्री पास कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहली बात तो रिपोजिशन कौन कर रहा है, रिपोजिशन मेसर्स गांधी एंड सन्स कर रहे हैं। तो हमने लिखा मेसर्स
गांधी एंड सन रिसीवर है उसको डेबिट किए और मोटरसाइकिल को क्रेडिट किए, एंड सन्स रिपोजिशन की वैल्यू कितनी आई 26,880 अगेन बाय P&L अकाउंट, दैट इज लॉस ऑन रिपोजिशन। लॉस ऑन रिपोजिशन आया 6,720 एंड द बैलेंस। अब अगर एसेट अकाउंट में बैलेंस आ रहा है तो वो एक मोटरसाइकिल की क्लोजिंग वैल्यू आएगी। तो एक मोटरसाइकिल की जो क्लोजिंग वैल्यू आनी चाहिए थी, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 मोटरसाइकिल की जो क्लोजिंग वैल्यू है 33,600 है, तो एक मोटरसाइकिल की क्लोजिंग वैल्यू आनी चाहिए 11,200। हम चेक करते हैं क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 11,200 आ रहा है, तो 50,400 माइनस 5,600 माइनस 26,880 माइनस 6,720, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 11,200 तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ एसेट अकाउंट। यहाँ पे दूसरा हम कंप्लीट कर लेते हैं मिसेस गांधी एंड सन्स। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेकेंड ईयर, उसने रिपोजिशन किया, रिसीवर बना, तो रिसीवर के डेबिट साइड में लिखा मोटरसाइकिल अकाउंट। मोटरसाइकिल की वैल्यू कितनी हो गई 26,880 और फिर हमने लिखा यहाँ पे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस निकाला 28,050 प्लस 1403, तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है क्रेडिट आ रहा है वो 29,453 आ रहा है माइनस 26,880, तो यहाँ पे आ रहा है 2,573। अभी स्टिल प्रसाद को मिस्टर गांधी एंड सन्स को कितना पैसा देना बाकी है 2,573। अगर थर्ड ईयर का अगर हम अकाउंट बनाना बोले होता, अगर थर्ड ईयर का बनाएंगे तो जो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो किस पे होगा 2,573 पे कैलकुलेशन होगा। अगर आपको बनाना है तो हम यहाँ बना सकते हैं थर्ड ईयर का लेजर अकाउंट भी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 2,573। क्वेश्चन में बताया नहीं है कि वो डिफॉल्ट कर रहा है कि नहीं, तो विल एज्यूम जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो पे करेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट 15,000 का नहीं होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा। जितना भी पैसा बकाया है बैलेंस अमाउंट है उस पर जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा उस इंटरेस्ट को मिला के जो प्रसाद है वो हायर सेलर को पेमेंट करेगा। तो अगर इस पे हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट। तो हमने इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया, तो जो बैलेंस अमाउंट है 2,573 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 2,573 मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो ये आ रहा है 129। तो जो प्रसाद है वो फाइनल इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करेगा उसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 2,573 प्लस 129, टोटल इट इज हाउ मच 2,702 एंड 2,007। लाइकवाइज अगर थर्ड ईयर अकाउंट बनाने बोला है, नॉर्मल केस में जिस डेट पे वो डिफॉल्ट कर रहा है हमको उतने ही ईयर का हमको यहाँ लेजर अकाउंट बनाना है, बट हम थर्ड ईयर का भी लास्ट ईयर का भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं थर्ड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू ऑफ एसेट इट इज इक्वल टू हाउ मच 11,200। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब आपको याद रखना है यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट पे होगा। कितनी मोटरसाइकिल बच गई है परचेजर के पास, एक, उसकी जो कैश प्राइस है वो कितनी है 14,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा 40,000 पे होगा एट द रेट ऑफ हाउ मच 10% पर एनम। तो कितना आया यहाँ पे 1,400 एंड नाउ it is the closing value of one motorcycle, it is 11,200 minus 1,400, तो ये आ गया 9,800।
क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द वन मोटरसाइकिल आफ्टर द थर्ड ईयर, यहाँ पे कितना आया 9,800 एंड टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 11,200। इसके बाद इंटरेस्ट है और डेप्रिसिएशन अकाउंट है, वो सिंपल है तो वो हम कर लेंगे, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। हम क्या स्टार्ट करेंगे अब, नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर सेलर। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में याद रखेंगे दो प्राइम लेजर अकाउंट है, एक परचेजर अकाउंट और दूसरा गुड्स रिपोजिशन अकाउंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोनों लेजर अकाउंट बनाने के लिए। इन द बुक्स ऑफ हायर सेलर दैट इज मेसर्स गांधी एंड सन। सबसे पहला हमारा जो लेजर अकाउंट होगा वो प्रसाद अकाउंट रहेगा। प्रसाद इट इज हायर परचेजर। इसने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है हायर सेलर से, मतलब हायर सेलर के लिए इट इज गुड्स एंड हायर परचेजर के लिए इट इज एसेट्स। एंट्री पास हुई, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अमाउंट, सेल्स अकाउंट, एंड इट इज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स इट इज हाउ मच, 4 मोटरसाइकिल है, multiplied by how much, 14,000 rupees per motorcycle. The amount it is how much, 56,000. And at the time of purchase हायर परचेजर ने 15,000 का डाउन पेमेंट किया, मतलब प्रसाद ने डाउन पेमेंट किया है। एंट्री पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट। तो हमने लिखा यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट इट इज हाउ मच, 15,000. Next it is the calculation of amount of interest. तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ। इंटरेस्ट इट इज एन इनकम फॉर द हायर सेलर, इनकम क्रेडिट होता है, इससे रिसीव करना है प्रसाद से, तो प्रसाद डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, प्रसाद के डेबिट से लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट इज हाउ मच, 2050. नेक्स्ट इट इज द रिसिप्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। तो हमने यहाँ लिखा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का अमाउंट कितना है 15,000। एंड नेक्स्ट इट इज द क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे आया अगेन 58,050 और यहाँ पे 30,000 है, तो क्लोजिंग बैलेंस आया 28,050। ये क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस में लिख लेते हैं। सेकेंड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस की अमाउंट कितनी है 28,050। अगेन फर्स्ट इट इज द इंटरेस्ट ड्यू, तो हमने यहाँ लिखा इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट में कितना अमाउंट लिखा हमने 1,403। अब क्या हो रहा है कि गुड्स रिपोजेस हो रहा है इन सेकेंड ईयर, तो हमने यहाँ लिखा बाय गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो गुड्स कितने में रिपोजेस हो रहा है, 3 मोटरसाइकिल को रिपोजेस कर रहा है एट द रेट ऑफ 26,880। और जो हम गुड्स रिपोजेस अकाउंट बनाएंगे तो हमारी एंट्री पास हुई गुड्स रिपोजेस अकाउंट डेबिट टू प्रसाद। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू प्रसाद, इट इज सेकेंड ईयर, गुड्स रिपोजेस हुआ है वैल्यू ऑफ 26,880। नेक्स्ट इट इज द बैलेंस अमाउंट which is still to be paid by Prasad, balance carried down। तो हम बैलेंस कंप्यूट कर लेते हैं। बैलेंस कितना आया 28,050 प्लस 1403 माइनस 26,880, तो ये आ रहा है कितना 2,573। इन थर्ड ईयर
ये ओपनिंग बैलेंस रहेगा, हमने यहाँ लिख रहे हैं 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2573। वैसे ही हम एक गुड्स रिपोजिट अकाउंट क्लोज कर देते हैं सेकेंड ईयर बाय बैलेंस कैरीड डाउन 26,880। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने थर्ड ईयर। अब नॉर्मली क्या रहता है, जो गुड्स रिपोजिट होता है उसको हायर सेलर फिर से बेच देता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,880। फिर हम क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या इसको हायर जो सेलर है वो बेच रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1200 रुपीज उस पे रिपेयर का एक्सपेंसेस किया, एंट्री पास हुई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन वो एक्सपेंसेस किसके लिए किया है, गुड्स रिपोजिट के लिए। तो एंट्री क्या पास हुई, गुड्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमने यहाँ लिखा टू बैंक अकाउंट, इट इज रिपेयर्स के एक्सपेंस अमाउंट है 1200। और फिर उसको इस गुड्स रिपोजिट को उसने पूजा को बेच दिया, मिसेस पूजा को। तो मिसेस पूजा अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजिट अकाउंट। तो थर्ड ईयर इट इज द सेल। तो हम यहां लिख रहे हैं बाय मिसेस पूजा, दैट इज द सेल वैल्यू। सेल वैल्यू इट इज गिवन हाउ मच, 35,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे कितना लिख रहे हैं, 35,000। तो अराउंड 28,080 की एसेट थी, गुड्स थी, और उसको कितने में बेच दिया, 35,000 में। ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हुआ गुड्स रिपोजिट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 P&L अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल। तो ये हुआ 26,880 प्लस 1200 माइनस 35,000। तो अमाउंट आ रहा है 6,920। So the profit on sale of goods repossessed, it is how much, 6,920. If next it is the Prasad fulfills and pays the final installment, then the goods will not be repossessed by the higher seller. आखिरी एक मोटरसाइकिल अभी भी बचा हुआ है किसके पास, हायर परचेजर के पास। तो वी आर एज्यूमिंग दैट हायर परचेजर हैज पेड द फाइनल इंस्टॉलमेंट, एंड द फाइनल इंस्टॉलमेंट 15,000 की नहीं है, क्योंकि अब जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो बचा है, जो प्रसाद को हायर सेलर को पे करना है, वो अमाउंट कितना है, 2,573। इसी पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट इट इज 2,573 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 2573 मल्टीप्लाइड बाय 5%। तो ये आ रहा है कितना, 129। और वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज पेड बाय प्रसाद, थर्ड ईयर पैसा हमको मिलेगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाय बैंक अकाउंट। तो कितना पैसा मिलेगा, 2573 प्लस 129, तो इट इज 2,702। And this account is also Prasad Limited, Prasad account is also closed. तो आज की क्लास में इतना ही। तो यहाँ पे अगेन दिस इज द केस ऑफ पार्शियल रिपोजिशन। 4 मोटरसाइकिल हायर सेलर ने बेची है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ, तो हायर सेलर ने क्या किया, 4 में से 3 मोटरसाइकिल की उसने क्या कर ली, जब्ती कर ली, रिपोजेस कर लिया है, और एक मोटरसाइकिल को अभी भी हायर परचेसर के पास छोड़ दिया है। तो इट इज अ केस ऑफ partial repossession. Again, in the partial repossession, we have to compute the repossession value, and repossession value compute करने का हिंट क्या रहेगा, अगर depreciation का परसेंटेज दिया हुआ एज पर द सेलर, इसका मतलब हमको उसको यूज करके repossession की वैल्यू कंप्यूट करनी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।